Yes, students, read to yourself. I'll be in a minute. Last class, we have discussed the first page. Okay. So last class हमने first page discuss किया था. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? We were discussing about how the scenario is being unfolded. ठीक है? ये जो story बताई गई है, ये story आपको बताई गई है according to the time when the independence have taken place already and the distribution, or you can say जब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, लोगों को बेसिस ऑफ देयर रिलीजन बांटा जा रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक आम आदमी की यहाँ पर स्टोरी बताई गई है. द हाउ यस यस यू पीपल हैवंट शेयर्ड इट राइट. क्या कर रहे थे उस दिन, मुझे ये बताइए. उस दिन जो भी बच्चे ज्वाइन किए थे, दे हैवंट गॉट द क्वेश्चंस. find out today and I'll give it. क्वेश्चन भेज दीजिए मैम. Also जो भी अगर if anyone has those questions, please share it with your friends. नहीं है तो I will again I have to find out those questions. अब कौन से questions required थे, I'm not sure. I have more than 10 आप ही कर questions. दीजिए. Okay. So parrot in the cage, as we were discussing, यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद की स्टोरी बताई जा रही है. 1 month after the independence, that is September morning, where रुक्मणी was sitting beside the road. रोड के साइड में वो बैठी हुई है. अमृतसर कोर्ट के रोड के साइड में. That means outside she is sitting and waiting for deputy collector so that वो आए और उसकी कुछ परेशानियों का सॉल्यूशन उसे बताएं. क्या परेशानी है उसे? What problems was she having? क्या दिक्कतें आ रही थी रुक्मणी को, जो डेप्यूटी कलेक्टर के सामने वेट कर रही थी अमृतसर कोर्ट के सामने? Yes, she didn't have any provisions. वो लाहौर में रहती थी before the independence,
the independence she used to live in Lahore. और उसके बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद क्योंकि वो हिंदुस्तानी थी, हिंदू थी, उसे जबरदस्ती लाहौर से भगा दिया गया, ठीक है, बेसिस ऑन हर रिलीजन. शी वाज टोल्ड टू लिव इन इंडिया बिकॉज शी वाज हिंदू. तो उसके बाद यहाँ पर जब उसका यहाँ पर वो आई अमृतसर में, यहाँ पर शी वाज लिविंग इन रेफ्यूजी कैंप्स बट इट वाज नॉट प्रॉपर प्रोविजंस. वहां पर प्रॉपर प्रोविजंस नहीं थे, इसीलिए उसकी तरह जितने भी लोग वहां पर परेशान थे, दे वर वेटिंग फॉर द डेप्यूटी कलेक्टर और एनीवन विद अथॉरिटी टू get any solution for their problems. उनको proper provisions दी जाए, उन्हें घर दिए जाए, उन्हें jobs दी जाए, यही सारी चीजें उनकी परेशानी में थी. Plus रुक्मणी used to work what? जब वो लाहौर में थी तो वो क्या काम करती थी? वो दूसरे घर में जाके बर्तन. Yes, she was a house worker. ठीक है, वो घर घर जाके कुछ ना कुछ काम करती थी, घर पे जो भी साफ सफाई का काम रहता था वो सारी काम वो करती थी. अब यहाँ पर उसे वो काम नहीं मिल रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हर इज वेटिंग फॉर जॉब्स. ठीक है, उतना प्रोविजंस, जो लोग एक्चुअल में बहुत वेल्दी थे, जिनके अपने घर थे, खानदानी घर थे, वो भी अपना घर छोड़ के यहाँ आए हुए थे. So they were not able to provide for themselves. That is why they were not able to afford any housekeepers. ठीक है, उनके खुद के प्रोविजंस नहीं हो पा रहे थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है किसी और को प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. So everyone was waiting for the authorities to do something. This was discussed till first page. And किसने बताया था रुक्मणी को about deputy collector? A stall keeper that used to sell roasted grams. ठीक है, उसने बताया that deputy collector might be helpful for these kind of problems. Next page. Anyone start reading? Second page says she waved her left hand gingerly. She waved her left gingerly to scatter the flies, but they resisted and set up an irritation in her soul, through which she felt a panic seizing her belly. Seize her belly. Seize her belly. बच्चे पंजाबी में नीतू कितने? The parrot cried another cry which he had learned from the old woman's friend who invariably asked to entering the lane, "Who are you?" For she used to be away earning her living as a maid for all work, cleaning utensils for the people in the bigger house in the lane were mostly hidden from the view in the inner sectums of the dark ground room by the well and agree. "Son, I don't know who I am," she said listently in the effort to keep the parrot quiet by assuring him she was taking notice of him. "I only know that if Pato had not given me her burqa and skipped it, I should not be here." The parrot resisted with the third call which Rukmani's friend used to call. "Nothing, sir. I am doing nothing. Only waiting," the old woman said sadly, as thought now she was holding a metaphorical conversation with her pet to keep her mind occupied. For from her interest arose a confusion which was like a panic. She had filled at the mad thoughts bursting with shouts of Allah Akbar, Har Har Mahadev, Sat Sri Akal. On the night of terror,
when she had fled from the land. There had been floods of blazing light, crackling of burning house flames, smoke, choking smoke, and she had thought that her last day had come, that the earth itself was troubled through the misdeeds of Kaliyu, Kaliyu, and that soon the dirty would open up, swallow everything, and then Pato had to told her she would murder if she did not leave. The parrot repeated. यहाँ पर हो क्या रहा है, she was sitting beside the road, ठीक है, and the flies were coming, मतलब जो मक्खियाँ हैं वो उसे परेशान कर रही थी, and she was getting irritated, ठीक है, because वो सुबह से धूप में बैठी हुई है, उसे headache हो रहा है because of sitting in the sunlight for so long, and even after that she had no one to take care of, ठीक है, उसने obviously उसके पास provisions नहीं थे, उसने खाया पिया भी नहीं होगा अच्छे से कुछ, and after that tiring day she didn't have the energy to do anything else, ठीक है, उसके पास उतनी energy भी नहीं थी कि वो कुछ और कर पाए. Now here the parrot is what? Parrot उसका जो pet है, ठीक है, that is the only you can say a family like thing जो उसके पास है. He is crying, मतलब he is shouting with the sentences that he used to listen from her friends, जो उसके friends रहते थे, because she used to work in everyone's house, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे लाहौर में, उसके घर के आसपास, वो उनके घर में जाती थी काम वाम करने के लिए, ठीक है, बर्तन या जो भी वो साफ सफाई करने के लिए. So उसके जो फ्रेंड्स थे, और फ्रेंड्स उसके काम के हाउस टू कॉल, ये तो कहाँ है, ठीक है, क्या कर रही है, ये सारी चीजें जब वो सुनता था, वही सारी चीजें उसे याद हो पैरेट को, and he is repeating every one of those words so that she will take notice, ठीक है, because जो पैरेट है वो ignored फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा है, because being a pet, house pet का मतलब क्या होता है, you are keeping some animal in house, you have to give proper attention to that pet, ठीक है, तो वो उसे लग रहा है that he is being ignored, that is why he is trying those sentences that used to gain attention from her, ठीक है, जैसे आप अगर किसी को बुला रहे हो तो ऑब्वियसली पीपल विल हियर, ठीक है, वो बात करने के लिए रुक जाएंगे. पैरेट यहाँ ये सोच रहा है कि अगर वो वहां से बात करने के लिए रुक जाती थी तो हो सकता है कि मैं भी बुलाऊंगा तो वो रुक जाएगी. दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग दोस सेंटेंसेस दैट ही यूज्ड टू हियर, कि जो उसके फ्रेंड्स जिनसे वो बात करने के लिए रुकती थी, वो सेंटेंसेस सारे वो रिपीट कर रहा है. एंड शी इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, मतलब क्या, वो बस रीअश्योर करने के लिए, और दिमाग में जो उसका पैनिक हो रहा था, जो टेरर उसके दिमाग में बैठा हुआ था जिस दिन वो अपने जान बचाने के लिए लाहौर से भागी थी, वो सभी चीज को इग्नोर करने के लिए शी इज हैविंग अ मेटाफोरिकल कन्वर्सेशन. मेटाफोरिकल मतलब, मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर पोएम में पढ़ा है, मेटाफर का मतलब क्या है. मेटाफर का मतलब होता है दैट इज समथिंग दैट इज नॉट सेड डायरेक्टली, ठीक है, मतलब किसी से आप कुछ जो कह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग, तो डायरेक्टली मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ठीक है, इट माइट बी फॉर यू, इट माइट बी फॉर अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर बैचेस, किसी के लिए बारे में भी बोल सकते हैं. सो इफ आई एम स्पीकिंग मेटाफोरिकली, मतलब मैं किसी और चीज का एग्जांपल लेके आपसे कुछ और कहना चाह रही हूँ, मतलब मेरा जो मीनिंग है दैट इज हिडन फ्रॉम माय वर्ड्स, ठीक है, मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ. फॉर एग्जांपल इफ आई से that this task is similar to climbing mountain, मतलब क्या, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बट आई एम एसोसिएटिंग इट विद अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, ठीक है, जो भी काम है उससे मैं एसोसिएट कर रही हूँ, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, इसलिए तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा जितना तुम्हें पहाड़ चढ़ने
पैरट वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, बट स्टिल वो उसे बार बार बोल रही थी, तो उसे रीअश्योरेंस मिल रहा था कि यस आई वाज गेटिंग सम अटेंशन, आई एम नॉट बीइंग इग्नोर्ड। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर डिस्कस की गई है, द डे शी फ्लेड फ्रॉम लाहौर, राइट। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है उसने अपने वर्ड्स में, राइटर ने जो अपने वर्ड्स में यहाँ पर बताया है, दैट द नाइट शी फ्लेड फ्रॉम लाहौर, एक फ्रेंड थी जिसे वो फातो बोलती है, ठीक है। द निकनेम इज यूज्ड हियर, नॉट द फुल नेम। तो फातो ने क्या किया, उसे बुर्का एक दिया जिसकी वजह से वो वहां से भाग पाई, ठीक है। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, yes there were a lot of shouts from different religious people, right। यहाँ पर मुसलमानों के भी shouts लिखे गए हैं, यहाँ पर हिंदुओं को भी लिखे गए हैं, सिखों को भी लिखे गए हैं, तो वो सारी चीजें उसे याद आती हैं। she only get flashes of burning and blazing light, burning blazing light मतलब हर जगह आग लगी हुई थी, ठीक है, सिर्फ उसे धुआं धुआं दिख रहा था, ठीक है। एंड शी थॉट दैट शी वाज गोइंग टू डाई, उसे लगा कि वो उस दिन मर जाएगी, ठीक है। बट हर फ्रेंड जो फतो जो थी, उसकी फ्रेंड जो थी, उसने कहा कि तुम अगर यहाँ से नहीं गई तो यू विल बी मर्डर्ड। she explained it in what ways had she had trouble that her last day had come। ये इतना मतलब समझ में आ गया कि उसे लगा कि यहाँ पर लास्ट डे है। द अर्थ इटसेल्फ वाज ट्रबल्ड थ्रू द मिसडीड्स, मतलब क्या कि वहां पर एनवायरनमेंट इस तरीके का हो गया था, एज इफ शी थॉट कि इतना ज्यादा जो मिसडीड मतलब क्या गलत काम हो रहे थे, उसे लगा कि अर्थ खुद ही उसके अगेंस्ट जाकर सबको खत्म कर देगी, whoever is guilty for those things, ठीक है। she was very much terrified from that point of time। so three things are mentioned here। पहला ये कि the parrot was getting not getting any attention, so she did what, she talked to the parrot, तो parrot को बार-बार रिप्लाई कर रही थी ताकि उसके अंदर का जो पैनिक और टेरर है वो उसे परेशान ना करे। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग, इट हैज बीन मेंशन कि वो वहां पर लाहौर में यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसकी फ्रेंड क्या बुलाते थे, क्या बोल के बुलाते थे, ठीक है, और कैसे बुलाते थे, वो क्या करती थी। थर्ड थिंग यहाँ क्या मेंशन की गई है कि वो रात जब वो लाहौर से भागी थी तब उसके मन में क्या चल रहा था और वहां पर जो माहौल था वो कैसे उसने डिस्क्राइब किया है। ये तीन चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। Any word that you find that you are not able to understand? कोई ऐसा वर्ड जो आपको लग रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? Which paragraph? बच्चा? Okay. Okay. She had felt at the mad throats bursting with shouts of yes। मतलब वहां पर जो लोग दंगा कर रहे थे, they were shouting their religious, ठीक है, जो उनका religious belief में shouts रहता है, ठीक है, वो मतलब मारने के लिए they were shouting before they were moving on to kill, ठीक है। that was mad throats, मतलब mad throats, it is not referring to the actual throats, it is referring to the people who were getting mad because of the religious beliefs they were divided on, ठीक है, जो उनके religious belief के ऊपर उन्हें divide कर दिया गया था, because priorly even if you are Hindu, even if you are in Musliman, you were living as if wherever your home was, ठीक है, आपका घर जहाँ बना हुआ था आप वहाँ पर रह रहे थे, but because of the partition the Muslims were forced to move on to the Pakistan region। जो मार्क किया गया था मैप पे, उसी रीजन में मुसलमानों को भेजा जा रहा था,
एंड बिकॉज दे वर फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया था, इसीलिए उनका रिप्रिकॉशन यानी कि उनका रिएक्शन ये था कि वो पाकिस्तानी रीजन में हिंदुओं को नहीं रहने दे रहे। ठीक है, हिंदू हो चाहे सिख हो, वो पाकिस्तानी रीजन में मुसलमानों के अलावा किसी और को नहीं रहने दे रहे थे। इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था कि पाकिस्तान से हिंदू निकल जाए, हिंदुस्तान से मुसलमान निकल जाए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर जो रिप्रिकॉशन हुआ, वहां पर उनको टाइम दिया गया, लीगली उन्हें टाइम दिया गया कि यू हैव दिस मच टाइम टू लीव योर होम, आफ्टर द पार्टीशन, आफ्टर द बॉर्डर्स आर मेड, यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव। जब बॉर्डर बन जाएंगे उसके बाद आपको जाने की आजादी नहीं रहेगी, आपको बहुत एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा वहां से जाने के लिए। तो उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दिया गया कि इतने टाइम में जब तक बॉर्डर नहीं बन रहा है तब तक आप बॉर्डर पार कर जाइए अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन। इफ यू आर हिंदू, कम टू इंडिया, इफ यू आर मुस्लिम, कम टू पाकिस्तान। दिस वाज द सिनेरियो। अब उसके बाद वहां पर जहां पर वहां मतलब जबरदस्ती आप जब घर से आप किसी को निकालोगे, ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई तो हमला करेगा ही। एंड बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, दोनों ही तरफ, इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान, दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा दंगे हुए। ठीक है, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग फायदा उठाने के चलते, ठीक है, बिकॉज देवर you can say there were people who not used to listen to anything other than religion. ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते थे जिनके पास रिलीजन के अलावा और कोई काम नहीं रहता था। ठीक है, people were dependent on one or two person only for their income, family income. उस सिचुएशन में जब बहुत सारे लोग सिर्फ डिपेंडेंट रहते थे अपने रिलीजन से, ठीक है, उस सिचुएशन में basis on the religion you were discriminating people and telling them to leave their household because they belong to that particular region. People were very aggressive because of this. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा था उनमें, बहुत ज्यादा वो इस चीज के अगेंस्ट थे, और बिकॉज उनके पास वो लोग नहीं को दोषी ठहरा सकते, ठीक है, they were not directly connected to those people and they were not able to attack those people directly. जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे तो वो दंगे करने लगे। दैट मींस जहाँ पर भी जिनको मुसलमान थे, जिनको एरिया में पाकिस्तान, वहाँ पर घर जलाने लगे, जो भी कांड थे वो सारे करने लगे। फिर यहाँ पर इंडिया में जो नाराज हो गए बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन पाकिस्तान, वो मुसलमानों पर ये सारी चीजें करने लगे। सो इट वाज अ वेरी ट्रेजिक सीन बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए द थिंग इज कि इफ यू डोंट हैव अ जॉब, ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ फैमिली, व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव? अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस सिनेरियो में जहाँ पर आप इंडिपेंडेंस से पहले आपके पास घर नहीं, if you don't have a family, if you don't have a job to do, you still have your religion to follow. वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे काम मिल जाएंगे based on your religion that you can do without free of cost, and you can just have a place to rest and place to eat. That is why the thing being religious basis पे discrimination होने का, इतना बड़ा aggression होने का यही मुद्दा था, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग they were dependent on their religion. ठीक है, they didn't have any family, they didn't have any jobs to do, they only had their religion. And उस basis पे discriminate करके जब उन्हें अपने घर से, उनके पास already कोई family होने नहीं था, सिर्फ एक ऐसा घर था जहाँ पर वो अपने basis religious basis की वजह से रह रहे थे। जो मुसलमान मक्का में रह रहे थे, जो हिंदू ये टेम्पल्स में जाके रहते थे, जो घर होते थे टेम्पल्स के आसपास जहाँ उन्हें रुकने का इजाजत दिया जाता था, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें जो हो गई, ये सारी चीजें छोड़ के जाना, दैट मींस they have to find another place where they didn't have to look. पहले उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहाँ मन को मक्का दिखा वहाँ चला, बट अब वहाँ पर उन्हें ये देखना होगा कि क्या वो हिंदुस्तान में है, क्या वो पाकिस्तान में। ठीक है,
So it was a very aggressive thing, मतलब जब आपके पास कोई बेसिस नहीं रहता, ठीक है, लाइफ हैज नथिंग टू ऑफर टू यू, ठीक है, आप बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आप कल को जॉब कर पाओगे कि नहीं, कल को कमा पाओगे, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। ऑब्वियसली इमोशनल, ठीक है, आप इमोशनल हो ही जाएंगे, बिकॉज योर लाइफ डजंट नीड्स टू यू एनीथिंग, ठीक है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई पाथ नहीं है जिसको आप फॉलो कर सको, तो ऑब्वियसली आप स्पिन करेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें चलेंगी, नेगेटिविटी भरेगी, और उस पे भी कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा आपको उकसाएं, ठीक है, some people who are very aggressive and who don't have to do anything other than giving speeches, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पीच दे देते लोगों को उकसाते थे, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है being that just follow a path जो आपके सामने दिख रहा है। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वहां पर इसी वजह से यहाँ पर इतने दंगे हो रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल जो बच गए उनको भी एक जो सर्वाइवल गिल्ट एक चीज होती है साइकोलॉजी में, मतलब द पीपल हु हैव सर्वाइव्ड समथिंग उनको ये गिल्ट रहता है, उनको ये खलता है कि मैं क्यों नहीं मर गया। So these kind of mental issues people were going through after all these things have happened, ठीक है, एक महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब सेटल हो गए, दंगे कम हो गए, लोग ऑलरेडी अपने एरिया में जहाँ वो बिलोंग करते हैं पास आउट हो चुके हैं, बट स्टिल द थिंग वाज वहां पर भी वो कहाँ थे, रेफ्यूजी कैंप्स में, बोथ वेज, जो हिंदू गए, जो हिंदू आए हिंदुस्तान में उन्हें भी रेफ्यूजी कैंप में रखा गया, जो पाकिस्तान में मुसलमान गए इधर से उन्हें भी रेफ्यूजी कैंप में रखा गया, एंड बिकॉज देयर वर नो प्रोविजंस, ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट उन्हें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही थी, नहीं कर रही, दे वर डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर सेल्फ, कि उन्हें खाना कहाँ से मिल रहा है, उन्हें पानी कहाँ से मिल रहा है, सब कुछ प्रोविजंस उन्हें खुद करने पड़ते थे, और हर किसी को even if the government was providing it was not enough for all of them, ठीक है, जितने नंबर्स गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा नंबर्स ऑब्वियसली थे, ठीक है, क्योंकि द थिंग वाज कि वहां पर बहुत लोग मर भी गए थे, दंगों में बहुत लोग मरे भी थे, ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को ये नहीं पता है कितने लोग दंगों में मरे, कितने लोग जिंदा बचे, ऑब्वियसली प्रोविजंस तो कम पड़ेंगे ही, राइट, और बिकॉज the government was more focused on building the border rather than the people. उनका मेन फोकस ये था कि हमारा जो बॉर्डर है दोनों तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों तरफ से उनका यही था कि बस बॉर्डर एक बार बन जाए, they were not thinking about the people who were living in the refugee camp, that they have to provide for those people, ठीक है, it took at least I believe 2 to 3 years to settle down all this mess, जो मेस पूरा क्रिएट किया गया, इनफैक्ट अभी भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी बहुत चीजों से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट मेस, ठीक है, लेकिन इट वाज एटलीस्ट सेटल डाउन टू एन एक्सटेंट यहाँ पर लोगों के पास प्रोविजन था और वो खुद के लिए कुछ कर सकते थे। यस, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, शी वाज रीअश्योरिंग द पैरट, जो पैरट थे, उस पैरट था उसे वो बार बार रीअश्योर कर रही थी जब वो आवाज लगा रहा था दैट शी वाज हियर विद हिम, ठीक है, वो उसके साथ ही है, वो कहीं नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, बस उसके साथ ही है, ठीक है, as she looked steadily towards the junction of the Mall Road and Pachri Road and saw no sign of the deputy commissioner, her last phrase seemed to get meaning. लास्ट फ्रेज यानी कि जब उससे पैरट ने पूछा कि कहाँ हो, ठीक है, तो उसने कहा कि आई डोंट नो वेयर आई एम, ठीक है, मैंने जो उसने भी कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, व्हाई डिड शी सेड दैट, क्यों उसने कहा ऐसा, रुक्मणी को पता था कि वो कहाँ पर है, वो अमृतसर फोर्ट के बाहर है, ठीक है, रोड पे बैठी है, फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे नहीं पता वो कहाँ है, एनी रीजन,
because she thought she didn't belong to anywhere. कि उसके पास एक्चुअल घर नहीं था जहां पर वो रह सकती, ठीक है. दैट इज व्हाई शी सेड आई डोंट नो वेयर आई एम. ठीक है. डोंट वांट टू यूज, लाइक शी कांट यूज. ठीक है, वो नहीं जा सकती थी वापस जहाँ वो रहती थी. उसके घर जो थे वो ऑब्वियसली चल गए थे, तो वहां पे वो वापस नहीं जा सकती बिकॉज इट वाज इन पाकिस्तान नाउ एंड शी वाज इन इंडिया राइट नाउ. वहां वो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसका अपना कोई घर नहीं रहा. ठीक है, अपना जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो कह सके कि वो यहाँ रहती है, तो अपना कोई घर नहीं रहने के कारण, उसका अपना कोई घर नहीं रहने के कारण उसने ये कहा कि उसको नहीं पता कि वो कहाँ है. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली शी डोंट हैव एन एड्रेस वेयर शी कैन से दैट आई लिव हियर. सो आफ्टर शी वाज लुकिंग एट दैट स्टडी, मतलब जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ वो वेट कर रही थी. डेप्यूटी कमिश्नर की गाड़ी जब नहीं आई तो उसे लगा कि ये जो वर्ड उसने कहा, जिसे नहीं पता वो कहाँ है, उसे कम उसका मीनिंग समझ में आ रहा था कि शी वाज सेइंग द एक्चुअल ट्रूथ. वो सिर्फ पैरेट को रीअश्योर नहीं कर रही थी, वो एक्चुअल ट्रूथ बोल रही थी. उसे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है. ठीक है, हाउ मच वी कैन फिनिश इट. ओके, सो आफ्टर दैट, आफ्टर शी वाज इन अ फेज, ठीक है, वो फेज में चलेगी. मतलब क्या कि उसने वो चीजें सारी याद करने लगी जो वो लाहौर में छोड़ के आई है, जो उस दिन हुआ जब वो बच के आई है. तो शी वाज इन अ फेज. फेज मतलब वो पूरा ध्यान से नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है. पैरेट बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बट स्टिल उसे वो इरिटेटिंग नहीं लग रहा था. क्यों नहीं लग रहा था इरिटेटिंग? Her answer to his metallic shrill nasal cries. Shrill मतलब shrill मतलब बहुत हाई पिच. जब कोई साउंड आप चिल्लाते हैं तो बहुत हाई पिच जब क्राइज होता है, जैसे पैरट कैसे चिल्लाता है, उसका वॉइस जो होता है वो बेस नहीं रहता उसके वॉइस में. हिज वॉइस इज व्हाट, ओनली हाई पिच्ड वॉइस. तो बहुत जोर से जब वो चिल्ला रहा है बहुत हाई पिच्ड वॉइस में, obviously someone has to be irritated, but she was not irritated. But उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी उसके वॉइस से. क्यों नहीं हो रही थी? यस, फर्स्ट थिंग वो बातें रिपीट कर रहा था जो उसे सुनने की आदत थी अपने दोस्तों से. तो शी गॉट एट दैट प्लेस जहां पर वो सेफ, मेंटली सेफ फील कर रही थी. सेकेंड थिंग, जब वो चिल्ला रहा था तो वो उसे प्रेजेंट में बुला रहा था. मीन्स शी वाज लिविंग दैट हॉरर. ठीक है, जिस दिन वो भागी, जिस दिन उसे दंगे दिखे वहां पर, वो सारी चीजों से उसे बाहर निकालकर जो एक्चुअल रियलिटी दैट, but maybe she didn't have provisions, maybe she didn't have anything to live for, कोई जॉब नहीं होने के बावजूद वो एटलीस्ट जिंदा थी और सेफ थी. ठीक है, she was safe there in the Amritsar and she was at least alive. being alive वाला जो फीलिंग था वो उसे तभी पता चल रहा था जब पैरट बहुत जोर से चिल्ला रहा था that she was present on the earth itself. Understood? So it is written here, but relieve the heavy pressure of the demons of the dreadful night on her head and her chest and her balls. मतलब कि वो पूरी तरह से जब वो टेरर में थी, ठीक है, वो उसे जब भी वो रात याद आती थी तो वो टेरर में रहेगी ऑब्वियसली. तो उस टेरर से निकलने के लिए जब भी पैरेट चिल्लाता था तो उसे लगता था कि वो रियलिटी में वापस आ गई. Okay, so the parrot was speaking again. Son, I am waiting for the Sahib so that he can give me some money to buy bread with. They say that the Congress Sarkar will give back what we have lost, son. They say. I heard at the station, son, at the station. Are you hungry, my son? You must be hungry. I shall buy you some grams from that stall keeper when the Sahib gives me money. That means that she has listened to some promises. यानी कि कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने उनको कहा कि आप जो भी छोड़ के आए हैं लाहौर से,
ठीक है, यानी कि आप पाकिस्तान के रीजन में अगर रहते हैं, आप इंडिया में अगर आए हैं और अगर आपने सब कुछ जितना भी छोड़ के आप आए हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर वापस दे दी जाएंगी। These were the promises of those people. ठीक है, और वो यही प्रॉमिस के बेसिस पे यहाँ पर इंतजार कर रही थी सबके साथ कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय आएगा और उसे पैसे देगा सो दैट शी कैन लिव प्रॉपरली। ठीक है, एटलीस्ट शी हैड समथिंग फॉर हरसेल्फ। So she was metaphorically reassuring herself, not the parrot. ठीक है, वो पैरट से उतना लगाव उसको इसलिए था क्योंकि वो उसका फैमिली मेंबर एक तरह से आप कह सकते हैं, वही एक बच्चा था। सेकेंड थिंग, उसे भी भूख लगी थी और उसने भी बहुत दिन से नहीं खाया था, बिकॉज शी डिडंट हैव एनीवन। वो जान बचा के भागी थी तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं लेके आई होगी। तो जो भी उसका रीअश्योरेंस था वो सिर्फ पैरट के लिए ही नहीं, वो खुद के लिए भी था। वो खुद को भी रीअश्योर कर रही थी, वो खुद को भी समझा रही थी कि साहिब अगर आ गए तो वो मुझे पैसे दे देंगे और उससे मैं खाना खा सकती हूँ। अंडरस्टूड? ओके, that's all for today. We'll move forward with the next thing. ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा, अगर इफ यू हैव द पीडीएफ विद योरसेल्फ, मार्क कर लीजिए where we have left. We'll start from here in the next class. And one more thing, आपका इस मंथ का असाइनमेंट मैंने दिया क्या? नहीं दिया, ओके। तो इस मंथ में आज ही का दिन बच गया है, देन उसके बाद तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। So do one thing, I'll give you an assignment for both December and January. ठीक है, दोनों के लिए ही मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। थोड़ा बड़ा असाइनमेंट रहेगा ताकि आपके पास ज्यादा दिन रहे। आप जनवरी फर्स्ट वीक और 10th कर देते हैं, 10th जनवरी